एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा जैसे कि एसएससी जेई के 2019 के एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज का होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के मैकेनिकल ब्रांच के जो भी क्वेश्चन अच्छे से है वो लेके आया हूँ। सो आप उन क्वेश्चन को व्यू कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट इज़ ऑल अबाउट एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर एंड आई एम प्रोफेसर मिनेंद्र सुर्वे. Let's start the session. So first question is from the dash 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 is a dimensionless quantity used in a heat transfer calculations. So Grashof number is given, Biot number, Stanton number and Prandtl number. So we know for the dimensionless quantity that is going to be used for heat transfer calculation, and that is nothing but a Biot number. For calculation of Biot number, we know how to calculate it. It is nothing but HL by K. Okay, that is the simple index of the ratio of heat transfer resistance inside of and at the surface of the body. So how to define Biot number? Actually Biot number is equal to HLC by K, where H is your film coefficient और हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, और उसको हम कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. ओके, उसके बाद अगर LC को डिफाइन करना है तो LC हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ रहता है. ओके, विच इज़ कॉमनली डिफाइंड एज, LC को हम डिफाइंड ऐसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. ओके, then thermal conductivity K stands for thermal conductivity of that body, that is nothing but watt per meter degree Celsius. Okay, so that is nothing but correct option is Biot number B. Next question, the ratio of thickness of thermal boundary layer to the thickness of hydrodynamic boundary layer is equal to Prandtl number and power n. Okay, here it is some mistake, they are given is a Prandtl number raised to power n. Okay, not multiply n, it is a Prandtl number raised to n. Okay, where n is the, so they ask that what is your n. So let's know, we know the Prandtl number is that nothing but it is the ratio of hydrodynamic boundary layer to the thermal boundary layer, and its power is nothing but cube. Okay, so hydrodynamic boundary layer to the thermal boundary layer raised to power 3. सो अगर हमने प्रांटल नंबर रेस टू पावर 1/3 कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर टू द थर्मल बाउंड्री लेयर का रेशो मिलेगा. ओके, सो इफ़ यू टेक दैट प्रांटल रेशो -1/3, so you will get the ratio as thermal boundary layer to the hydrodynamic boundary layer, and they ask here the ratio of thickness of thermal boundary layer to the thickness of hydrodynamic boundary layer. So it is nothing but Prandtl number raised to minus of 1/3. Okay, so Prandtl number raised to minus of 1/3, so they ask the value of when power, so that power is nothing but -1/3, and it is option A is the right for that. Okay, next question, heat is transferred from an electric bulb by conduction, convection, radiation. All options are correct, so we have to pick which one is correct. So look at here, for if you particularly looking for a heat transferred from electric bulb, that is mainly by radiation. Okay, how it is possible? It is due to the radiation in visible range, and hence we are able to see the things. Okay, when a bulb is switched on, so here it is answer is nothing but your radiation. So somewhat points are given. Filament is heated due to conduction. Okay, that filament is present inside the bulb, that is heated due to a conduction. Then there is a convection which drives the flow inside the bulb, transferring the heat from the filament throughout the bulb via the movement of the fluids. In this case, that's argon gas. Okay, but finally in last, heat is a transfer from electric bulb by radiation. So कंडक्शन भी प्रेजेंट रहता है, जैसे कि फिलामेंट जो रहता है वो हीटेड होता जाता है, तो वो कंडक्शन की वजह से होता है. तो बट लास्ट जो होता है फाइनली द लास्ट हीट ट्रांसफर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब बाय रेडिएशन. ओके,
सो इसका आंसर हमें रेडिएशन ही करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट फॉर दैट। कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। ओके कहाँ पे थे हम, रेडिएशन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assumption made in the Fourier's law is that the heat flow is in the steady state through a solid medium in one dimension. Option only A is right, only B is right, both A and B are correct, none of this. Okay, so you have to pick which one is the correct. So these are the assumptions given in a Fourier's law. So I am going to tell you what are the assumptions for the Fourier's law. Okay, steady state mean that the properties like temperature remain same with the time. Okay, that is your steady state. Second is assumption is what, heat flow is unidirectional. Okay, heat आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये assumption है. थर्ड assumption अगर देखा जाए तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज अ कांस्टेंट एंड टेम्परेचर प्रोफाइल इज अ लीनियर. ओके, दैट इज ऑल्सो assumption. योर टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो भी dt/dx रहता है वो आपका कांस्टेंट है. ओके, और टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे मिलता है हमें, लीनियर मिलता है. फोर्थ वन, देर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन. ओके, इंटरनल हीट जनरेशन दैट इज QG, Q सफिक्स G जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें नहीं रहता. देर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन. ओके, एंड लास्ट वन, द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. Okay, so accordingly what are these correct, is in a steady state it is also correct, though a solid medium in one dimension. Okay, unidirectional and steady state both are correct. So यहाँ पे ऑप्शन सी मैच हो रहा है, both A and B are correct. Okay, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. और जो भी मैंने 5 अजम्पशंस बोले आपको वो सभी अजम्पशंस याद करके जाना है. जैसे मटेरियल इज होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, देर इज नो हीट, देर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन, देन हीट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज अ कांस्टेंट एंड टेम्परेचर प्रोफाइल इज लीनियर. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट ईयर में 2020 में, या फिर अभी जो 2019 का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. ओके, ये हुआ. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal air compressor cycle with a clearance on PV diagram can be represented by dash dash processes. ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन फ्रेम हुए. तो PV डायग्राम यहाँ पे बनाई है. PV डायग्राम में देख सकते हो आप 1 to 2 प्रोसेस, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5 ऑल प्रोसेस आर गोइंग टू बी शोन ओवर हियर. सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि फॉर एयर कंप्रेसर, ओके, आइडियल एयर कंप्रेसर में विथ क्लियरेंस ऑन पीवी डायग्राम, यहाँ पे क्लियरेंस दिखाई दे रहा है आपको, क्लियरेंस वॉल्यूम भी दिया हुआ है. तो इसके साथ अगर देखें तो हमें कौन से प्रोसेस मिलते हैं. तो यहाँ पे देख रहे हो प्रोसेस 3 to 4 एंड प्रोसेस 2 to 5. इन दैट प्रोसेस योर प्रेशर इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो इफ़ आपका प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहता है तो हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं. ओके, तो यहाँ तो हमें एक प्रोसेस समझ में आ रहा है कि एक तो 2 प्रोसेस यहाँ पे आइसोबैरिक है, और बचे हुए 2 कैसे. अभी प्रोसेस हम बात करेंगे कि 2 to 3 प्रोसेस. देखो ये जो प्रोसेस है 2 to 3 और 5 to 4, अभी ये जो प्रोसेस है PV/N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको एडियाबेटिक इंडेक्स दिया हुआ है. तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि 2 एडियाबेटिक प्रोसेसेस. प्रोसेस 2 to 3 इज एडियाबेटिक एंड प्रोसेस 4 to 5 इज एडियाबेटिक. सो यहाँ पे हमें आंसर जो मिल रहा है कि 2 एडियाबेटिक है और 2 आइसोबैरिक, दैट इज प्रेशर कांस्टेंट. तो यहाँ से हमें बी ऑप्शन सही मिल रहा है, तो ऑप्शन बी को पिक करेंगे. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री लेयर के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन. तो बाउंड्री लेयर के हम बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रहता है बाउंड्री लेयर. अ बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज a thin layer at the surface where gradients of both velocity and temperature are small. A thin layer at the surface where velocity and velocity gradients are large. A thin layer at the surface where velocity and temperature gradients are large. A thin layer at the surface where gradients of both velocity and temperature are large. तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर का फिगर बताया है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और टेम्परेचर बाउंड्री लेयर दोनों की प्रोफाइल निकाली हुई है. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ग्रेडियंट्स जो बात कर रहे हैं, तो ग्रेडियंट्स के बारे में हम देखेंगे कि ग्रेडियंट्स क्या रहता है. ग्रेडियंट बेसिकली मीन द चेंज इन वेलोसिटी और टेम्परेचर अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन विच इज़ वेरी स्मॉल एट द बाउंड्री एज वेलोसिटी एंड टेम्परेचर बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द एम्बियंट एट अ बाउंड्री लेयर. ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि
जो भी वेरिएशन रहता है चेंज इन वेलोसिटी और टेम्परेचर अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल एट द बाउंड्री। ओके, तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि अ थीन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर स्मॉल। बट यहाँ पे आंसर दिया हुआ डी, सो यहाँ पे करेक्शन है, डी आंसर तो नहीं हो सकता। यहाँ पे आप करेक्ट कर लो, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन। तो ए आंसर आना चाहिए, अ थीन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर स्मॉल। और यहाँ पे डी जो आंसर बोला है उसमें क्या गलती हुई है, अ थीन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर लार्ज। नो, दैट इज नॉट अ ट्रूथ। सो करेक्ट आंसर आपका है थीन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर स्मॉल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि देखो, अ लिक्विड मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ डैश डैश डैश। तो सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किस लिक्विड मेटल में है, और चार लिक्विड मेटल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है, लीड दिया है और लास्टली मर्क्यूरी दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोडियम, अगर सोडियम को देखें तो ये लिक्विड मेटल सोडियम का है। तो लिक्विड मेटल सोडियम की थर्मल कंडक्टिविटी जैसे कि हमने बोला है कैपेसिटी टू कंडक्ट कैरिंग द हीट, ओके, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज नथिंग बट वैट पर मीटर केल्विन में मेजर करते हैं हम लोग। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम की आपकी रहती है ऑलमोस्ट 140 वैट मीटर केल्विन। आप लिख के रख सकते हो शॉर्ट नोट्स में, ये काम आएगा आपके नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। पोटेशियम की लिख ले लो आप, पोटेशियम की रहती है 100 वैट पर मीटर केल्विन रहता है। लीड की रहती है 36 वैट पर मीटर केल्विन, और मर्क्यूरी की रहती है सबसे कम रहती है 8 वैट पर मीटर केल्विन। तो सबसे हाईएस्ट किसकी है, सबसे हाईएस्ट तो आपकी इसमें सोडियम की है, वो है 140 वैट पर मीटर केल्विन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो बाद में, ओके। इन रिगार्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, इन रिगार्डिंग अ न्यूक्लियर बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज ग्रेटर दैन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, द बबल्स आर क्रिएटेड बाय एक्सपांशन ऑफ entrapped gas or vapor at a small cavities in the surface. The temperature is greater than that of the film boiling and all options are correct. तो न्यूक्लियर बॉइलिंग, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या रहता है। न्यूक्लियर बॉइलिंग इज अ टाइप ऑफ बॉइलिंग that is going to be take place when the surface temperature is hotter than the saturated fluid temperature by a certain amount, but where heat flux is below the critical heat flux. That is the definition. तो अगर डेफिनेशन को हम पढ़े तो हमें पता चलता है कि दैट टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन योर फिल्म बॉइलिंग, ओके। व्हेन योर सरफेस टेम्परेचर इज हॉटर दैन सैचुरेटेड फ्लूइड टेम्परेचर बाय सर्टन अमाउंट, बट फेयर हीट फ्लक्स इज बिलो द क्रिटिकल हीट फ्लक्स, ओके, जहाँ पे हीट फ्लक्स आपका क्रिटिकल हीट फ्लक्स से बिलो रहता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन में हमें क्या मिलता है, in surface temperature hotter than the saturated fluid temperature, the temperature of the surface is greater than saturation temperature of the liquid, okay। उसके बाद मिल रहा है द टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द फिल्म बॉइलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमें टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द फिल्म बॉइलिंग, सो सी ऑप्शन करेक्ट है। से को देखो बी ऑप्शन क्या दिया है, बबल्स आर क्रिएटेड बाय एक्सपांशन एंट्रप्ट गैस और वेपर एट अ स्मॉल कैविटीज इन द surface and temperature of the surface is greater than that of the saturation temperature of the liquid, ओके। तो सी ऑप्शन, दो ऑप्शन में यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे ए और बी भी क्लोज हो सकता है, लेकिन अगर देख सके तो इसका प्रॉपर आंसर तो सी ही होना चाहिए, द टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन यूर दैट ऑफ द फिल्म बॉइलिंग, ओके। अगर इसमें किसी को लग रहा है कि यहाँ पे ए बी सी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो सकते, तो आप कमेंट करके उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसका तो सही आंसर है कि आपका जो भी टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द फिल्म बॉइलिंग ही रहेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट फॉर दैट। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ स्पीयर इज गिवन बाय के बाय एच, के बाय 4h, h by 2k एंड 2k by h, ओके। सो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि, ओके, 2k by h वेयर k इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, ओके। 2k by h को हम स्पीयर के बारे में पूछ रहे हैं, तो 2k by h रहता है। अगर वो सिलेंडर के बारे में पूछता तो आपका क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या रहता, k by h रहता।
यहाँ पे स्फीयर के बारे में पूछ रहा है तो 2k/h रहेगा. ओके, k is thermal conductivity of insulation and h is the convection heat transfer coefficient of the outer surface, h. Okay, watt per meter square degree Celsius, that is the unit of your convection heat transfer coefficient. ओके, तो सबसे सिंपल ऑप्शन 2k/h और इजी क्वेश्चन था यहाँ पे ये. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बेफेलेज आर प्रोवाइडेड ऑन द शेल साइड टू. व्हाई दिस बेफेलेज आर प्रोवाइडेड? पहले हम देखते हैं कि बेफेलेज क्या रहते हैं. बेफेलेज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन. अ बेफेल इज डिजाइन टू सपोर्ट ट्यूब बंडल्स एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हम बेफेलेज यूज़ करते हैं और ये एक इंटीग्रल पार्ट रहता है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का. वो डिज़ाइन का ये इंटीग्रल पार्ट रहता है. तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए. प्रिवेंट द स्टेग्नेशन ऑफ अ शेल साइड फ्लूइड. यस, ये हो सकता है. स्टेग्नेशन प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इम्प्रूव द हीट ट्रांसफ़र. यस, अगर हम इफ़िशिएंसी बढ़ा रहे हैं तो हीट ट्रांसफ़र भी इम्प्रूव हो सकता है उसमें से. टू प्रोवाइड द सपोर्ट के लिए तो यूज़ होता ही है. तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो सकता है. तो आंसर इज डी. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखो, टू इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K आर अवेलेबल फॉर लैगिंग अ पाइप कैरिंग अ flowed fluid if the radial thickness of each material is the same. Material with a higher thermal conductivity should be used for the inner layer and one with a layer and one with the lower thermal conductivity for the outer. B ऑप्शन क्या देगा देखो. मटेरियल विथ अ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज फॉर द इनर लेयर एंड वन विथ द हायर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर आउटर. ओके, इट इज द इमटेरियल इन विच सीक्वेंस द इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर यूज, नन ऑफ दिस. ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन को हम देख सकते हैं कि अगर वो पाइप कैरिंग हॉट फ्लूइड है तो यहाँ पे सिलेंडर के बारे में पूछ रहे हैं तो k/h रहता है. और k का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट केस में k/h ही दिया है. सेकंड केस में यहाँ पे 2k बोला है. तो अगर हम देखें क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन RC2 के बारे में अगर देखें तो 2 टाइम्स RC1 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो भी स्मॉलर है तो मटेरियल विद अ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी हम क्या करेंगे, शुड बी यूज फॉर द इनर लेयर एंड वन विद द हायर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर आउटर. इस एक्सप्रेशन से भी हम बोल सकते हैं कि जो आपका लोअर थर्मल कंडक्टिविटी है वो इनर इंसुलेशन मटेरियल के लिए यूज़ करो और जो आपका हायर थर्मल कंडक्टिविटी 2k है वो आप आउटर सरफेस के लिए रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ऑप्शन बी इज द राइट फॉर दैट. द मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ऑफ. सबसे मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिविटी किस मटेरियल का रहता है? तो थर्मल डिफ्यूजिविटी इज अल्फा एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, अल्फा. तो थर्मल डिफ्यूजिविटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी है. तो इससे हम बोल सकते हैं कि जिस मटेरियल की आपकी थर्मल कंडक्टिविटी वेरी लो है उस मटेरियल की आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी लो रह सकती है. तो इस चारों ऑप्शन में रबर का थर्मल जो कंडक्टिविटी रहता है इज वेरी लो रहता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर 3 मटेरियल. सो वी कैन से थर्मल डिफ्यूजिविटी इज अ लो फॉर रबर also. So option correct is B option. Next question. The process of heat transfer from a hot body to a cold body is a straight line without affecting the intervening medium is known as conduction, convection, radiation or all of the options are correct. So यहाँ पे देखा जाए तो heat is carried through atomic vibration and electronic motion. तो सबसे पहले कंडक्शन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कन्वेक्शन और रेडिएशन का. तो रेडिएशन का डेफिनेशन क्या है? अगर रेडिएशन किसे बोलते हैं? रेडिएशन इज द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. ओके, इट इज़ द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफर हीट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द मीडियम थ्रू विच इट पासेस. तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम चले जाए तो यहाँ पे रेडिएशन ऑप्शन करेक्ट है. प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय स्ट्रेट line or without affecting the intervening medium, that is the important line. So if they are providing that line without affecting the intervening medium, so we can choose the radiation is the correct answer, because in the definition of radiation is also that it is the only mode of heat transfer that does not require any medium, okay, to transfer a heat and does not affect the medium through which it passes. So option correct for this is the radiation, option C.
Which surface will have least emissivity? स्मूथ ग्लास, प्लास्टर, एल्यूमिनियम फॉइल एंड कॉन्क्रीट. तो यहाँ पे सबसे लिस्ट इमिसिविटी पूछा है. तो इमिसिविटी पहले क्या होता है देखते हैं. इमिसिविटी इज अ मेजर ऑफ मटेरियल्स रेडिएटिंग इफिशियंसी. एन इमिसिविटी ऑफ 1 implies that the material is having 100% efficient at a radiating energy. An emissivity of 0.2 implies that the material radiates only 20% of that which is capable of radiating. So यहाँ पे स्मूथ ग्लास, प्लास्टर, एल्यूमिनियम फॉइल और कंक्रीट. सबसे अच्छा देखा जाए तो सबसे लिस्ट किसका रहता है, तो एल्यूमिनियम फॉइल का रहता है लिस्ट. आप लिख के रह सकते हो. एल्यूमिनियम फॉइल इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, ऑप्शन सी. With increase in a temperature, thermal conductivity of air. So they ask the relationship, if we are going to increase the temperature, what will be the effect on thermal conductivity. Okay, so thermal conductivity of gases or air is increases with increase in temperature. Okay, and in case of liquid, thermal conductivity is going to be a decrease with increase in temperature. Okay, so gases में भी अलग है और लिक्विड में अलग है. सो लिक्विड में क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होते हैं, और गैसेस में उसका अपोजिट होता है कि अगर गैसेस है, एयर है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विथ इंक्रीज इन अ टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज इंक्रीजेस. ऑप्शन ए इज राइट फॉर दैट. सो दिस ऑल आर द questions. I think we have covered today 15 questions and all are very good. So you can prepare this way also, and you can take a short notes of these all the questions, और extra जो भी मैंने बताया आप शॉर्ट नोट करके ले सकते हो और आपकी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर watching my channel. If you are not subscribed, please do subscribe, and all the very best for the your SSC JEE examination. Thank you very much.